Gurubhyo Namaha, Srimatre Namaha. Welcome to Vedajanani. Narayaniyam Dashakam 86. King Salva attacks Dwaraka. Vrittam Chirakdara. First, let's see the meanings of the shlokas, English meanings followed by Tamil meanings. Krishna, while you were away, King Salva attacked your city Dwaraka using a magical flying palace. Your son Pradyumna fought Salva's army fiercely for 27 days. Then Krishna, you rushed back and fought Salva. Salva used illusions and magical powers and even made a fake Rupam of your father and killed him to upset you. Some say you were fooled for a second, but sage Vyasa clarifies that being God, you could never be tricked. Krishna, you then destroyed Salva's flying palace and cut off his head. Next, his friend Dantavaktra attacked you but was killed by you. Because Dantavaktra was constantly thinking of you even in anger, his soul merged into you, Krishna. Next is when Draupadi was humiliated in Kaurava's court. You gave her endless robes to protect her dignity. Later in the forest, when a short tempered sage Durvasa was demanding food for thousands, hey Krishna, you ate a little single food left in Draupadi's empty pot, which miraculously satisfied the hunger of everyone in the universe. Before the war, Arjuna chose to have an unarmed you, Krishna, on his side, while the enemy Duryodhana took your army. Once you went to the enemy's court to talk for peace. When they tried to arrest you, you revealed your massive cosmic form Vishwarupa and walked out of the court. On the battlefield, Arjuna broke down, refusing to fight his relatives. Hey Krishna, you became his charioteer and comforted him, teaching him that the soul is immortal, death is an illusion, and he must do his duty. Krishna, you then showed him your cosmic form again to give him confidence. In the war, grandfather Bhishma was wiping out the Pandavas' army. To protect Arjuna, Krishna, you broke his own vow of not using a weapon. You threw at Bhishma a heavy chariot wheel. Bhishma happily surrendered and was ready to die in your hands, but you smiled and stepped back. Krishna, you protected Arjuna constantly. You blocked a deadly divine missile with your chest, hit the sun with your weapon to help Arjuna to defeat a foe before sunset. Also, you pressed the chariot into the mud so a deadly arrow missed Arjuna's neck and only knocked off his crown. Krishna's brother Balarama did want to fight in the war. So he went on a pilgrimage. He punished a disrespectful priest, killed a demon disrupting prayers, and returned just as the war was ending, and he witnessed the final duel between Bhima and Duryodhana. At the end of the war, the enemy fired a nuclear weapon to kill the last unborn grandchild of the Pandavas inside his mother Uttara's womb. Hey Krishna, you shrunk to the size of a thumb, entered the womb of the mother with your divine Sudarshana and protected the baby Parikshit. Bhishma gave his final teachings on his deathbed, stared lovingly at you, Krishna, and achieved salvation. Then you helped Yudhishthira to become king and then returned home to Dwaraka. துவாரகை மீது சால்வனின் படையெடுப்பு.
கிருஷ்ணா, நீ துவாரகையில் இல்லாத சமயம் பார்த்து சால்வன் என்ற அரசன் மாயாசக்தி கொண்ட பறக்கும் விமானத்துடன் துவாரகையை தாக்கினான். உன் மகன் பிரத்யும்னன் சால்வனின் படையுடன் 27 நாட்கள் மிக கடுமையாக போர் புரிந்தான். செய்தி அறிந்த நீ வேகமாக போர்க்களத்திற்கு வந்தாய். சால்வன் தன் மாயா சக்தியால் உன் தந்தை வசுதேவரை கொல்வது போல் ஒரு போலி தோற்றத்தை உருவாக்கினான். நீ ஒரு க்ஷணம் கலங்கினாய் என்று சிலர் சொல்வர். ஆனால் எதையும் அறிந்த பகவான் அந்த மாயையில் ஏமாறவில்லை என்று வியாச முனிவர் கூறுகிறார். கிருஷ்ணா, நீ சால்வனின் பறக்கும் விமானத்தை உடைத்து அவனது தலையையும் உன் சக்கரத்தால் துண்டித்தாய். அடுத்து வந்த அவனது நண்பன் தந்தவக்தனையும் வதம் செய்தாய். தந்தவக்தன் எப்போதும் உன்னையே நினைத்துக் கொண்டிருந்ததால் பகையாக இருந்தாலும் அவனது ஆன்மா உன்னுடன் கலந்தது. கிருஷ்ணா, சூதாட்ட சபையில் திரௌபதியின் துகிலாடை உரிக்கப்பட்ட போது கிருஷ்ணா, நீ அவளுக்கு எல்லையற்ற ஆடைகளை வழங்கி மானம் காத்தாய். பின்னர் காட்டில் துர்வாச முனிவர் ஆயிரக்கணக்கான சீடர்களுடன் பசியோடு வந்தபோது நீ திரௌபதியின் பாத்திரத்தில் இருந்த ஒரே ஒரு கீரையை உண்டு உலகத்தில் உள்ள அனைவரின் பசியையும் அடக்கினாய். போர் தொடங்கும் முன் அர்ஜுனன் ஆயுதம் ஏந்தாத உன்னை மட்டும் தன் பக்கத்திற்கு தேர்ந்தெடுத்தான். ஆனால் துரியோதனனோ உன் படையை தேர்ந்தெடுத்தான். கிருஷ்ணா, நீ ஒருமுறை பாண்டவர்களுக்காக தூதுவனாக கௌரவர் சபைக்கு சென்றாய். அப்போது துரியோதனன் அமைதியை மறுத்து உன்னை கட்ட முயன்ற போது நீ உன் பிரம்மாண்டமான விஸ்வரூபத்தை காட்டிவிட்டு திரும்பினாய். போர்க்களத்தில் தன் சொந்த பந்தங்களை கொல்ல மனமில்லாமல் அர்ஜுனன் தேரிலேயே அமர்ந்து விட்டான். அவனுக்கு தேரோட்டியாக இருந்த நீ, ஆன்மா அழியாதது, கடமையை செய் என்று பகவத்கீதை உபதேசம் செய்து மீண்டும் விஸ்வரூபம் காட்டி அவனுக்கு தைரியத்தை ஊட்டினாய். தாத்தா பீஷ்மர் பாண்டவ படையை துவம்சம் செய்து கொண்டிருந்தார். அர்ஜுனனை காப்பாற்ற போரில் ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன் என்ற உன் சபதத்தை கிருஷ்ணா நீ கைவிட்டாய். கோபத்தோடு ஒரு தேர் சக்கரத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு பீஷ்மரை நோக்கி ஓடினாய். அதை கண்டு மகிழ்ந்த பீஷ்மர் பகவானான உன் கையால் இறக்க தயாராக தன் ஆயுதங்களை கீழே போட்டார். கிருஷ்ணா, நீ அர்ஜுனனை பல முறை காப்பாற்றினாய். பகதத்தன் வீசிய வைஷ்ணவ அஸ்திரத்தை உன் மார்பில் தாங்கி மாலையாக மாற்றினாய். ஜெயத்ரதனை வதம் செய்ய சூரியனை உன் சக்கரத்தால் மறைத்து பொய் அஸ்தமனத்தை உருவாக்கினாய். கர்ணன் வீசிய நாகாஸ்திரம் அர்ஜுனனின் கழுத்தை தாக்காமல் இருக்க தேரை மண்ணுக்குள் அமுக்கி அவனது கிரீடத்தை மட்டும் இழக்கச் செய்தாய். கிருஷ்ணா, மகாபாரத போரில் யாருக்கும் ஆதரவளிக்க விரும்பாத பலராமர் தீர்த்த யாத்திரை சென்றார். வழியில் தவறு செய்த ரோமஹர்ஷகரை கொன்று அவர் மகனை அந்த இடத்தில் அமர்த்தினார். வல்லவன் என்ற அரக்கனையும் அழித்தார். போர் முடியும் தருவாயில் திரும்பி வந்து பீமனுக்கும் துரியோதனுக்கும் நடந்த இறுதி கதாயுத போரை கண்டுவிட்டு துவாரகைக்கு திரும்பினார். போரின் இறுதியில் அஸ்வத்தாமன் பாண்டவ வம்சத்தை அழிக்க உத்தரை என்பவளின் கர்ப்பத்தில் இருந்த குழந்தையை குறிவைத்து பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏவினான். அப்போது கிருஷ்ணா, நீ கட்டை விரல் அளவே உள்ள சிறிய வடிவம் எடுத்து உத்தரையின் கர்ப்பைக்குள் புகுந்து உன் சக்கரத்தால் அந்த குழந்தையை பரீட்சித்தை காப்பாற்றினாய். அம்புகளின் படுக்கையில் படுத்திருந்த பீஷ்மர் தர்மருக்கு அனைத்து தர்மங்களையும் உபதேசித்தார். பின்னர் உன்னை நோக்கி தியானித்து முக்தி அடைந்தார். கிருஷ்ணா, நீ தர்மரை வைத்து 3 அஸ்வமேத யாகங்களை செய்ய வைத்தாய். தர்மத்தை நிலைநாட்டிவிட்டு துவாரகைக்கு திரும்பினாய். ஹே கிருஷ்ணா, குருவாயூரப்பா, பவனபுரபதே, என் நோய்கள் அனைத்தையும் குணப்படுத்தி என்னையும் காத்தருள வேண்டும். Let's chant the Dashaka slowly, each shloka 2 times. Salvo Baishmi Vivahe Yadubala Vijitaha Chandrachudadvimanam Vindan Saubham Samaye Tvayi Vasati Kurum Stvatpurim Abhyabhankshit Pradyumnastam Nirundhan Nikila Yadubhadaihi न्यग्रहेदुग्रवीर्यं तस्यामात्यं द्युमन्तं व्यजनि च समरः
सप्तविंशत्यहान्तम् साल्वो भैष्मी विवाहे यदुपलविजितः चन्द्रचूडाद्विमानम् विन्दन् सौभं समाये त्वयि वसति कुरुं स्वत्पुरीम् अभ्यभाङ्क्षेत् प्रद्युम्नस्तं निरुन्धन् निखिल यदुबडैः न्यग्रहीदुक्रवीर्यम् तस्यामात्यं द्युमन्तं व्यजनि च समरः सप्तविंशत्यहान्तम् तावत्त्वं रामशाली त्वरितमुपगतस्खण्डितप्रायसैन्यं सौभेशं तं न्युरुन्धाः स च किल गतया शार्ङ्गम् अभ्रंशयत्ते मायाता व्यहिंसित् अपि तव पुरतस्तत्त्वयापेक्षणार्धम् नाज्ञायीत्याहुरेके तदिदम् अवमतं व्यास एव न्यषेधीत् तावत्त्वं रामशाली त्वरितमुपगतस्खण्डितप्रायसैन्यम् सौभेशं तं न्युरुन्धाः स च किल गतया शार्ङ्गमभ्रंशयत्ते मायाता तं व्यहिंसित् अपि तव पुरतस्त्वयापेक्षणार्धम् नाज्ञायीत्याहुरेके तदिदम् अवमतं व्यास एव न्यषेधीत् क्षिप्त्वा सौभं गदाचूर्णितम् उदकनिधौ मंशुसाल्वेऽपि चक्रेण उत्कृत्ते दन्तवक्त्रः प्रसभम् अभिपदन् अभ्यमुञ्चद्गदां ते कौमोदक्याहतोऽसौ अपि सुकृतनिधिः चैद्यवत् प्रापदैक्यम् सर्वेषामेष पूर्वं त्वयि धृतमनसा मोक्षणार्थोऽवतारः क्षिप्त्वा सौभं गदाचूर्णितम् उदकनिधौ मंशुसाल्वेऽपि चक्रेण उत्कृत्ते दन्तवक्त्रः प्रसभम् अभिपदन् अभ्यमुञ्चद्गदां ते कौमोदक्याहतोऽसावपि सुकृतनिधिः चैद्यवत् प्रापदैक्यम् सर्वेषाम् एष पूर्वं त्वयि धृतमनसा मोक्षणार्थोऽवतारः त्वय्यायाते जाते किल कुरु सतसि द्यूतके संयतायाः क्रन्दन्त्यायाज्ञसेन्याः सकरुणमकृताः चेलमालाम् अनन्ताम् अन्नान्तप्राप्त शर्वांशज मुनिचकित द्रौपदी चिन्तितोत प्राप्त शाकान्नमश्नन् मुनिगणमकृताः तृप्तिमन्तं वनान्ते त्वय्यायाते जाते किल कुरु सदसि द्यूतके संयतायाः क्रन्दन्त्यायाज्ञसेन्याः सकरुणमकृताः चेलमालामनन्ताम् अन्नान्तप्राप्त शर्वांशज मुनिचकित द्रौपदी चिन्तितोत प्राप्त शाकान्नमश्नन् मुनिगणमकृताः तृप्तिमन्तं वनान्ते युद्धोद्योगे तमन्त्रे मिलति सति वृतः फल्गुनेन त्वमेकः गौरव्ये दत्तसैन्यः करिपुरमगमो दौत्यकृत् पाण्डवार्तम् भीष्मद्रोणादिमान्ये तव खलु वचने धिक्कृते गौरवेण व्यावृण्वन् विश्वरूपं मुनिसदसि पुरीं शोभयित्वा गतो भूः
युद्धोद्योगे तमन्त्रे मिलति सति वृतः फल्गुणेन त्वमेकः गौरव्ये दत्तसैन्यः करिपुरमगमो दौत्यकृत् पाण्डवार्तम् भीष्मद्रोणादिमान्ये तव खलु वचने धिक्कृते कौरवेण व्यावृण्वन् विश्वरूपम् मुनिसदसि पुरीं शोभयित्वा गतो भूः सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द जिष्णोस्त्वं कृष्णसूतः खलु समरमुखे बन्धुघाते दयाळुम् किन्नं तं वीक्ष्य वीरं किमिदम् अयि सखे नित्य एकोऽयमात्मा को वध्यः कोऽत्र हन्ता तदिह वदभियं प्रोज्य मय्यर्पितात्मा धर्म्यं युद्धं चरेति प्रकृतिमनयता दर्शयन् विश्वरूपम् जिष्णोस्त्वं कृष्णसूतः खलु समरमुखे बन्धुघाते दयाळुम् किन्नं तं वीक्ष्य वीरं किमिदमयि सखे नित्य एकोऽयमात्मा को वध्यः कोऽत्र हन्ता तदिह वदभियं प्रोज्य मय्यर्पितात्मा धर्म्यं युद्धं चरेति प्रकृतिमनयता दर्शयन् विश्वरूपम् भक्तोत्तम सेथ भीष्मे तव धरणि भरक्षेपकृत्यैकसक्ते नित्यं नित्यं विभिन्द्य द्यवनिभृदयुतं प्राप्तसादे च पार्थे निःशस्त्रत्वत्प्रतिज्ञां विजहदरिवरं धारयन् क्रोधशाली वाधावन् प्राञ्जलिं तं नदशिरसमथो वीक्ष्य मोदात भागाः भक्तोत्तम सेत भीष्मे तव धरणि भरक्षेपकृत्यैकसक्ते नित्यं नित्यं विबिन्द्य द्यवनिभृदयुतं प्राप्तसादे च पाते निःशस्त्रत्वत्प्रतिज्ञां विजहदरिवरं धारयन् क्रोधशाली वाधावन् प्राञ्जलिं तं नदशिरसमथो वीक्ष्य मोदादपागाः युद्धे द्रोणस्य हस्ते स्थिररणभगदत्तेरितं वैष्णवास्त्रम् वक्षस्याधत्तचक्रस्तगितरविमहाः प्रार्थयत् सिन्धुराजम् नागास्त्रे कर्णमुक्ते क्षितिमवनमयन् केवलं कृत्तमौलिम् तत्रेतत्राभिपार्थम् किमिव न हि भवान् पाण्डवानाम् अकार्षीत् युद्धे द्रोणस्य हस्ते स्थिररणभगदत्तेरितं वैष्णवास्त्रम् वक्षस्याधत्तचक्रस्तकिदरविमहाः प्रार्थयत् सिन्धुराजम् नागास्त्रे कर्णमुक्ते क्षितिमवनमयन् केवलं कृत्तमौलिम् तत्रेतत्राभिपार्थम् किमिव न हि भवान् पाण्डवानामगार्षीत् युद्धादौ तीर्थगामी स खलु हलधरो नैमिषक्षेत्रमृच्छन् अप्रत्युत्तायिसूत क्षयकृदतसुतं तत्पदे कल्पयित्वा यज्ञं पल्वलं पर्वणि परिदलयन् स्नाततीर्थोरणान्ते सम्प्राप्तो भीमदुर्योधन रणमशमं वीक्ष्यात पुरीं ते युद्धादौ तीर्थगामी स खलु हलधरो नैमिषक्षेत्रमृच्छन्
अप्रत्युत्तायि सूत क्षयकृतदसुतं तत्पदे कल्पयित्वा यज्ञं पल्वलं पर्वणि परिदलयन् स्नाततीर्थोरणान्ते सम्प्राप्तो भीमदुर्योधन रणमशमं वीक्ष्यात पुरीं ते संसूप्तद्रौपदेय शबणहतधियं द्रौणिमेत्यत्वदुक्त्या तन्मुक्तं भ्राममस्त्रं समहृतविजयो मौलिरत्नं च जह्रे उच्छित्यै पाण्डवानां पुनरपि च विशत् उत्तरगर्भमस्त्रे रक्षन् अङ्गुष्ठमात्रः किल झठरमगाः चक्रपाणिर्विभो त्वम् संसूप्तद्रौपदेय क्षपणहतधियं द्रौणिमेत्यत्वदुक्त्या तन्मुक्तं ब्राह्ममस्त्रं समहृतविजयो मौलिरत्नं च जह्रे उच्छित्यै पाण्डवानां पुनरपि च विशत् उत्तरागर्भमस्त्रे रक्षन् अङ्गुष्ठमात्रः किल जठरमगाः चक्रपाणिर्विभो त्वम् धर्मौघं धर्मसूनोर् अभिदददखिलं जन्दमृत्युः स भीष्मः त्वां पश्यन् भक्तिभूम्नैव हि सबदीययौ निष्कलभ्रमभूयम् संयाज्यादश्वमेधैः त्रिभिरतिमहितैर्धर्मजं पूर्णकामम् सम्प्राप्तो द्वारकां त्वं पवनपुरपते पाहि मां सर्वरोगात् धर्मौघं धर्मसूनोर् अभिदददखिलं चन्दमृत्युः स भीष्मः त्वां पश्यन् भक्तिभूम्नैव हि सबदीययौ निष्कलभ्रमभूयम् संयाज्यादश्वमेधैः त्रिभिरतिमहितैर्धर्मजं पूर्णकामम् सम्प्राप्तो द्वारकां त्वं पवनपुरपते पाहि मां सर्वरोगात् श्री हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमः सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद. Let's chant the Dashaka fully in the medium speed. साल्वो वैष्मी विवाहे यदुबलविजितः चन्द्रचूडाद्विमानम् विन्दन् सौभं समाये त्वयि वसति कुरुं स्वत्पुरीम् अभ्यभाङ्क्षीत् प्रद्युम्नस्तं निरुन्धन् निखिल यदुपडैः न्यग्रहीदुग्रवीर्यम् तस्यामाद्यं द्युमन्तं व्यजनि च समरः सप्तविंशद्यहान्तम् तावत् त्वं रामशाली त्वरितमुपगतस्खण्डितप्राय सैन्यं सौभेशं तं निरुन्धाः स च किल गतया शार्ङ्गमभ्रंशयत्ते मायातातं व्यहिंसीत् अपि तव पुरतस्तत्त्वयापेक्षणार्थम् नाज्ञायीत्याहुरेके ददिदमवमतं व्यास एव न्यषेधीत् क्षिप्त्वा सौभं गदाचूर्णितम् उदकनिधौ मंक्षुसाल्वेऽपि चक्रेण उत्कृत्ते दन्तवक्त्रः प्रसभम् अभिपदन् अभ्यमुञ्चद्गदान्ते कौमोदक्या हतोऽसावपि सुकृतनिधिः चैद्यवत् प्रापदैक्यम् सर्वेषामेष पूर्वं त्वयि धृतमनसां मोक्षणार्थोऽवतारः त्वय्यायाते तजाते किल कुरु सदसि द्यूतके संयतायाः क्रन्दन्त्यायाज्ञसेन्याः सकरुणमकृताः चेलमालामनन्ताम् अन्नान्तप्राप्त शर्वां शजमुनिशकित
द्रौपदी चिन्तितोत प्राप्त साकाश्रमश्नन् मुनिगणमकृताः तृप्तिमन्तं वनान्ते युद्धोद्योगे तमन्त्रे मिलति सति वृतः फल्गुणेन त्वमेकः गौरव्ये दत्तसैन्यः करिपुरमगमो दौत्यकृत् पाण्डवार्तम् भीष्मद्रोणादिमान्ये तव खलु वचने धिक्कृते कौरवेण व्यावृण्वन् विश्वरूपं मुनिसदसि पुरीं शोभयित्वा गतो भूः। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। जिष्णो स्वं कृष्णसूत खलु समरमुखे बन्धुघाते दयालुं खिन्नं तं वीक्ष्य वीरं किमिदमयि सखे नित्य एकोऽयमात्मा को वध्य कोऽत्र हन्ता तदिह वदभियं प्रोज्य मय्यर्पितात्मा धर्म्यं युद्धं चरेति प्रकृतिमणयता दर्शयन् विश्वरूपम्। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। भक्तोत्तम सेत भीष्मे तव धरणि भरक्षेप कृत्यैकसक्ते नित्यं नित्यं विबिन्द्यत्यवनिवृतयुतं प्राप्त साधे च पार्थे निशस्त्रत्वत्प्रतिज्ञां विजहदरिवरं धारयन् क्रोधशाली वाधावन् प्राञ्जलिं तं नत शिरसमतो वीक्ष्य मोदादपागाः युद्धे द्रोणस्य हस्ते स्थिररणभगदत्तेरितं वैष्णवास्त्रं वक्षस्यादत्तचक्र सदितरविमहाः प्रार्थयत् सिन्धुराजम् नागास्त्रे कर्णमुक्ते क्षितिमवनमयन् केवलं कृत्तमौलिम् तत्रेतत्रापि पार्थं किमिव न हि भवान् पाण्डवानामकार्षीत् युद्धादौ तीर्थगामी सकलु हलधरो नैमिषक्षेत्रमृच्छन् अप्रत्युत्थायि सूत शयकृदत सुतम् तत्पदे कल्पयित्वा यज्ञं पल्वलं पर्वणि परिदलयन् स्नानदीर्थोरणान्ते सम्प्राप्तो भीमदुर्योधन रणमशमं वीक्ष्य यादपुरीं ते संसूप्त द्रौपदेय क्षबणहत धियं द्रौणिमेत्यत्वदुक्त्या तन्मुक्तं भ्राममस्त्रं समहृत विजयो मौलिरत्नं च जह्रे उच्चित्यै पाण्डवानां पुनरपि च विशत् उत्तरागर्भमस्त्रे रक्षन्नङ्गुष्टमात्रः किल जठरमगाः चक्रपाणिर्विभो त्वम् धर्मौघं धर्मसूनोरभिदददखिलं जन्दमृत्युः स भीष्मः त्वां पश्यन् भक्तिभूम्नैव हि सबदीययौ निष्कलभ्रमभूयम् संयाज्यादश्वमेधैः त्रिभिरतिमहितैर्धर्मजं पूर्णकामम् सम्प्राप्तो द्वारकान्तं पवनपुरपते पाहि मां सर्वरोगात्। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। I request you to subscribe to Veda Janani and hit a like and share with your family and friends.